I want to get into the word today आज वचन में जाना चाहेंगे हम, because I believe there is a word which God wants to bring very powerfully to you today. यकीन करते हैं कि ये वचन है जो परमेश्वर बड़े सामर्थ्य तौर पर आज आपके सामने पेश करना चाहता Now है। listen. अब सुनिए, As the Lord speaks, जैसे प्रभु बोलता है there will be impartation. वरदान का डाला जाना होगा। सुनिए The ध्यान से, anointing will come and start ministering to those areas where you need it. अभिषेक आकर देखिए उन क्षेत्रों में आपकी सेवा टल करेगा जहां पर आपकी उसकी जरूरत है। Many times people want men to listen to their problems, बहुत बार लोग चाहते हैं कि इंसान उनकी समस्याओं को सुने, but God's way is He sends His word and heals them. He लेकिन sends परमेश्वर His word and delivers them. परमेश्वर का तरीका ये होता है कि अपने वचन को भेजकर वो उनको चंगा करता है, वो वचन भेजकर उनको छुटकारा देता है। You know, when you take your car to a good mechanic, देखिए जब आप अपनी गाड़ी अपनी कार को एक अच्छे मैकेनिक के पास ले जाते हैं, you know what he tells those guys? अब जानते हैं उन लोगों से क्या कहते हैं आप? Start karo car. कार शुरू करो, Just start the car. स्टार्ट कर दो कार, And he will just say, wait, don't say anything, start the car. और वे कहेंगे रुको जरा, And he will listen to the sound. और वे सुनेंगे कुछ, And then he will tell, this is not right, that is not right, this is not right, that is not right. फिर वे बताएंगे कि ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, ऐसा सही नहीं है, ये When सही you नहीं come to God, है। जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, just come. बस आइए, He will tell you all that is right and all that is wrong, and He will fix you so that even when you look in the mirror, you will say, that's a new person. Somebody say, I receive it. वो सब Hallelujah. कुछ सही तरह से व्यवस्थित कर देगा, और फिर आईने में आप Yes. देखकर कहेंगे ये परमेश्वर ने काम कर दिया है। Hallelujah. You know, the light always exposes darkness. देखिए उजियाला जो होता है हमेशा अंधकार का पर्दाफाश करता है। Please listen very carefully. सुनिए बड़े ध्यान से, That's the speciality of light. यही तो खासियत होती है उजियाले की। You shine the light, आप उजियाले में चमकते हैं it exposes darkness. और वह अंधकार का पर्दाफाश कर देता In the है। same way, उसी तरीके the से New Testament exposes the father of darkness, that is the devil. नया नियम जो है अंधकार का पिता जो कि शैतान है उसका पर्दाफाश करता You know, है। Jesus called him the father of lies, not to give him a title, not to raise him up, but to expose him. और देखिए यीशु ने शैतान को झूठ का पिता कहा, उसको कोई पदवी उपाधि देने के लिए नहीं, लेकिन उसका पर्दाफाश करने के In लिए। these end times, ये अंत समय में you know, we need to be really careful so that we don't miss the call of God. We don't miss what God has for us. देखिए हमें सावधानी बरतने की जरूरत है ताकि जो परमेश्वर की बुलाहट हमारे लिए, जो परमेश्वर ने हमारे लिए संजोए रखा है, उससे हम ना चुकें। There are three areas which I want to talk about देखिए today. 3 क्षेत्र है जिसके बारे में आज चर्चा करना चाहते हैं, Please treat it as a word of the Lord this evening for you, for your life, for your family. और चाहते हैं कि ये आप अपने लिए, अपने जिंदगी, अपने परिवार के लिए बड़े गंभीरता से लीजिएगा। Because you see, क्योंकि आप देखते whenever हैं the word comes, जब कभी वचन आता it है, is not to entertain you. ये आपके मनोरंजन के लिए नहीं है, It is not to, you know, just make you feel good. ये आपको अच्छा एहसास कराने के लिए भी नहीं है, It is to instruct you. ये आपको निर्देश देने के लिए It है, is to lead you. ये आपकी अगुवाई करने के लिए Are you है। listening right now? क्या सुन रहे हैं इस The वक्त? Bible says the wise listen and pay heed to the word. और बाइबल ऐसा कहती है कि बुद्धिमान सुनता है और वचन पर ध्यान लगाता है। There are 3 schemes of the enemy that he brings against godly people in these last days. शत्रु की ऐसी 3 देखिए ऐसी योजनाएं होती है जो परमेश्वर के लोगों के खिलाफ में शत्रु लेकर आता In है, fact, he brings it against all the people. और दरअसल वो सारे लोगों के खिलाफ में लाता है। The first step, write this down. पहला तरीका जो है लिख लीजिए, He brings blindness against the people. लोगों के खिलाफ में वो अंधेपन को लाता है, He brings blindness against the people. वो लोगों के खिलाफ में अंधेपन को लाता है। For my base scripture, I want you to go to 2 Corinthians chapter 4 and verse 4 right now. और इसके लिए देखिए बुनियादी वचन जो है इस समय देख रहे हैं 2 कोरिन्थियों 4 अध्याय में देखेंगे। It says, whose minds the God of this age has blinded. वचन में लिखा है जिनके मनों को, जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। You see, there is a blindness that the enemy brings upon the people. और आप देखते हैं एक प्रकार का अंधापन है जो शैतान लाता है परमेश्वर के लोगों पर। This blindness has an effect on the people's lives. और देखिए ये अंधापन जो है इसका असर लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। When the blindness comes upon a person, जब वो अंधापन लोगों के ऊपर आता है the first thing that happens is those people, they don't believe. तो पहली चीज जो होती है वो ये है कि लोग विश्वास नहीं करते। फिर Even when things are happening right in front of their eyes, भले उनकी आंखों के सामने ही चीजें क्यों ना घट रही हैं, right in front of their television sets or mobiles or whatever, they do not believe. The reason is because Satan has blinded their eyes. देखिए टेलीविजन पे या उनकी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है लेकिन वे विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि शैतान ने उनके मनों को अंधा करके रख दिया है। There is a blindness which I want you to be very careful about. और आपको बताना चाहते हैं एक प्रकार का अंधापन होता है जिसके बारे में आपको बहुत ही सावधान रहना है। Why does Satan blind people? क्यों शैतान लोगों को अंधा कर देता है? So that they don't see the light of the gospel of the glory of Christ. ताकि वे मसीह के तेजो में सुसमाचार के प्रकाश को न देख पाए। Because if they can see the gospel, if they can understand this, then I tell you they would be eternally saved. That's what the enemy stops people from happening. क्योंकि वो जानता है कि अगर लोग सुसमाचार को सुन के उसे समझ लें तो वे अनंत काल के लिए उद्धार को पालेंगे, इसलिए शत्रु कोशिश करता है कि वे समझने ना पाएं। You are praying.
आप प्रार्थना कर रहे हैं, but you talk to your husband, लेकिन आप अपने पति से बात करते and हैं he will say, और वो कहेंगे, you keep doing what you're doing, let me do what I'm doing. तुम जो कर रही है वो करते रहो, मुझे जो करना है मैं करता रहूंगा। You see, आप there is देखो, a blindness. आप देखते हैं एक प्रकार का अंधापन You है। show him testimonies. आप उन्हें गवाहियां दिखाते You हैं, tell him what God is working, आप उनसे कहती हो कि परमेश्वर देखो क्या क्या काम कर रहा and they है, make fun of you. लेकिन वे आपका मजाक उड़ाते हैं। This is one of these effects of blindness. और देखिए यही उस अंधेपन का एक प्रभाव हो सकता है। You know, this blindness in the spirit realm, how does it look और like? देखिए ये अंधापन जो है ना आत्मा के आयाम में किस तरह से दिखता है। You see, when Paul, he encountered this blindness in his देखिए life, पौलुस ने भी अपने जिंदगी में इस अंधेपन का सामना किया and था। when hands were laid upon Paul, और जब पौलुस के ऊपर हाथ रखे गए, something like scales fell off his eyes. कुछ तो उसकी आंखों पर छिलके जैसा गिरा। This blindness is not some feeling, it's real, I'm telling you. ये अंधापन जो है किसी प्रकार का महसूसीकरण या आभास नहीं, लेकिन ये असलियत में होती है। Today, बताते हैं many आपको। of you, these scales are going to fall off your eyes in the name of Jesus. आज आप में से बहुत Receive. सारे लोगों की आंखों पर से ये छिलका गिरने जा रहा है यीशु Things के नाम which were में। hidden from you, today will be revealed to you in Jesus' ये name. चीजें जो अब तक आपसे छिपी हुई थी अब आप पर प्रकट हो जाएंगे यीशु के नाम Listen में। carefully right now. सुनिए ध्यान से इस वक्त, This is very, very powerful. ये बहुत ही जबरदस्त है। How many of you listening say, I'm receiving right now? कि तो सुन रहे इस समय कहे मैं ग्रहण कर रहा हूं इस वक्त। Okay, so this thing, the first thing it does is it stops you from believing the gospel of Jesus. तो देखिए ये चीज जो पहली चीज जो करता है ये आपको यीशु के सुसमाचार में विश्वास करने It से रोक देता stops you from believing what God is doing around you. है। जो परमेश्वर आपके आसपास कर रहा है उसमें विश्वास करने से आपको रोक देता And है। when you don't believe what God is doing around you, to receive from God becomes very difficult. और It's next to impossible. और जब आपके पास आसपास जो हो रहा है उसमें विश्वास करना आपके लिए असंभव लगता है, तो देखिए फिर जो परमेश्वर आपके लिए करना चाह रहा है उसे भी आप ग्रहण नहीं कर पाएंगे, ये असंभव हो Are you जाएगा। following me right now? आपको समझ में आ रहा है इस You know, वक्त? you tell them to pray, they will pray half-heartedly, और अगर आप उनसे कहते चलो प्रार्थना करो तो वे आधा अधूरा दिल से प्रार्थना करेंगे and they will join you. और वे आपके साथ They'll जुड़ेंगे mumble something, और वे कुछ ऐसा बुदबुदाएंगे and after 2 days they want something to happen in their lives, और 2 दिनों के बाद वे चाहेंगे कुछ उनकी जिंदगी में होए and then they will tell you, और फिर वे कहेंगे see, I prayed, nothing happened. देखो मैंने प्रार्थना किया लेकिन कुछ हुआ It's not that you prayed, did you believe? नहीं। ये नहीं कि आपने प्रार्थना किया, क्या आपने विश्वास किया। Are you following me right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त And you get frustrated. और फिर आप हताश हो जाते हैं। Today, आज that frustration is about to leave you in आज वो Jesus' name. हताशाएं आपको छोड़ के जाने वाली हैं यीशु के I'm नाम में। telling you, somebody shout amen, somebody. आपसे कह रहे हैं, आपको यकीन दिलाते कोई तो कहे आमीन इस वक्त। Go with me to the book of Genesis 19. I want to show you something very powerful right at the start. और चाहते हैं निकाले उत्पत्ति का 19वां अध्याय, सीधे आपको शुरुआती पुस्तक में दिखाते हैं। Genesis 19 and verse 11. उत्पत्ति का 19वां अध्याय उसके 11वें Now, वचन this is a story about Lot in the city of Sodom and Gomorrah. में। और देखिए ये लूत की कहानी है जो सदोम और अमोरा के नगर के बारे में बताया And जा there रहा are some men that are trying to act dirty against Lot and his family. है। और वहां पर कुछ ऐसे मर्द लोग थे, आदमी लोग थे जो लूत और उसके परिवार के खिलाफ ऐसे गंदे दुष्ट काम We कर see रहे the थे। same spirit operating in the world now. हम देखते हैं उसी प्रकार की आत्मा आज दुनिया में काम कर रही है। I'm serious. कहते हैं आपसे You know, in those days earlier, women used to get scared to walk on the road alone because fearing a men would do something to them. और देखिए ऐसा होता था कि पहले महिलाएं घबराया करती थी सड़क पर अकेले चलने में, क्योंकि इंसानों का, मर्दों का डर उनमें होता था कि वे आकर कुछ बुरा उनके साथ करेंगे। And now, और अब even men are afraid to walk in the night for fear of what men will do to them. How many of you understand what I'm आज saying? मर्द लोग भी देखिए Yes. रात में अकेले बाहर जाने में घबराते हैं, इस बात से डरते हैं कि मर्द लोग, दूसरे मर्द लोग आकर उनके साथ कुछ बुरा ना कर दें। So this spirit was moving in Sodom and Gomorrah. तो यही आत्मा सदोम और अमोरा में भी काम कर रही थी। Listen to this. सुनिए इसे। And the angels that came to rescue Sodom and Gomorrah, और वे स्वर्गदूत जो वहां पर आए थे, history tells us that Sodom and Gomorrah was destroyed. History tells us it's not only Bible, but it's pure history. और देखिए इतिहास में यह दर्ज है कि सदोम और अमोरा नाश हो गए। सिर्फ बाइबल में ही नहीं, इतिहास के पन्नों पर भी यह दर्ज है। All right, let's not go there. चलिए वहाँ And they जाएं। struck the men who were at the doorway of the house with blindness. Listen very carefully. और देखिए वचन में देखें, और उन्होंने क्या छोटे क्या बड़े सब मर्दों को जो घर के द्वार पर थे अंधा कर दिया। They struck the men at the doorway of the house with blindness. और देखिए सब पुरुषों को, सब मर्दों को जो घर के द्वार पर थे अंधा कर दिया। Both small and great. क्या छोटे क्या बड़े। So that they became weary. They became frustrated trying to find the door. देखिए आगे वचन में लिखा है, अतः वे दरवाजे को टटोलते टटोलते ढूंढते ढूंढते थक गए, हताश हो This गए। was not physical blindness. ये कोई शारीरिक अंधापन नहीं था, This was spiritual blindness. ये एक प्रकार का आत्मिक अंधापन था। You see, they could feel the wall. देखिए वो दीवार को महसूस कर पा They रहे could थे, see one another. एक दूसरे को देख पा रहे थे, But for some reason, लेकिन कुछ कारण से they could not see the door.
वे दरवाजे को नहीं देख How सके। many of you are understanding right now? कितना समझ रहे The हैं इसको? first thing that this was not some physical blindness, this was a spiritual kind of blindness. सबसे पहले ये कोई शारीरिक या भौतिक अंधापन नहीं था, ये एक प्रकार का आत्मिक अंधापन था। Deuteronomy 28:28, God says, I will strike you with blindness. Speaking about the disobedient, this blindness is a curse in the realm of the spirit. व्यवस्था विवरण की पुस्तक में उसका 28वां अध्याय 28वां वचन में ऐसा कहता है कि परमेश्वर का दंड के मुताबिक वो अंधा कर देगा, यानी कि आज्ञा उल्लंघन करने का मतलब ये तो एक प्रकार का श्राप है। You see, this blindness stopped them from accessing the door. Hello, are you with me right आप now? देखते हैं, इस अंधेपन ने उनको रोक दिया था दरवाजे तक पहुंचने The से। door was right in front of them. दरवाजा बिल्कुल उनकी आंखों के सामने था, Breakthrough was right in front of them. उनका आश्रम बिल्कुल उनके सामने था, Because of this blindness, लेकिन इस अंधेपन की वजह से they were trying to find the door. वे दरवाजा ढूंढने की कोशिश कर They रहे were थे। saying, where is the door? वे कह रहे थे दरवाजा कहाँ है? It is somewhere over here, but I can't find it. वो दरवाजा यही कहीं पर, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा। Have you heard about this? क्या आपने कभी ये सुना है? So close, इतना करीब, so close, इतना करीब, and yet so far. और फिर भी इतना दूर। Oh, you're understanding what I'm आप trying to say समझ रहे right हैं इस now. वक्त? Some people are doors. कुछ लोग दरवाजे होते हैं, If you get connected with them, big possibilities open. अगर आप उससे जुड़ जाएं तो देखिए बड़ी बड़ी संभावनाएं आपके लिए शुरू हो Some जाएंगे। friendships are doors. कुछ दोस्ती जो होते हैं वे एक दरवाजा होते हैं। You connect with them, अगर आप उनसे जब जुड़ते and हैं, your life just takes off. आपकी जिंदगी बस उड़ान लेने लग जाती You're like, if only I can meet that fellow, है। और आप अगर सिर्फ उस व्यक्ति से मैं मिल सकूं, my life will just move up in मेरी the जिंदगी corporate सीधे ladder. एकदम उड़ान की ओर चली जाएगी। But for some reason, लेकिन कुछ कारण से you're not able to access that door. आप उस दरवाजे तक पहुंच नहीं पाते हैं। So close. कितना करीब। Could it be because of blindness? संभव है ना कि अंधेपन की वजह से हुआ हो? Could it be that the power of blindness is obstructing you from accessing the door in the realm of the spirit, which will take you spiritually higher, financially stronger, or emotionally more deeper? संभावना है कि उस Oh. आत्मिक अंधेपन ने आपको रोक दिया उस दरवाजे तक पहुंचने से। अगर वो वहां पे पहुंच गए Come होते on. तो देखिए आत्मिक तौर पे, Come या on. भौतिक तौर पे, मानसिक तौर पे आपके लिए एक समृद्धि की और बुलंदी का दरवाजा खोल देता। Listen to this. सुनिए से, Sometimes, कभी कभी you know, so many people write to me, कई सारे लोग लिखते हैं, Pastor, I'm just waiting upon the Lord. मैं बस प्रभु के इंतजार में रुका I'm हूँ, waiting मैं रुका for the हूँ right person. सही व्यक्ति के लिए। And they're not bad people. और वे बुरे लोग नहीं हैं, They're not like, you know, all that stuff. वे उस प्रकार के लोग And for भी नहीं some reason, हैं। और कुछ कारण से they are Rachel, they're Rebecca, they're whatever, Sarah, whatever you call, or you're Adam or whoever, you know. It's just somewhere there. But for some reason, they cannot access that door. I believe it's because of this blindness. Today, the blindness has to go. उनका Hallelujah. उनके I said राहेल, उनके today, रिबिका, उनके सारा, उनका that blindness आदम has बस to उनके go. आसपास ही कहीं है, लेकिन on, तक come पहुंच on, नहीं come पाते। on. लेकिन आज वो अंधापन जा रहा है। say blindness go. कहे अंधापन जा। See Hagar, आप देखते हैं हाजिरा को, she grew proud. She grew proud. वो घमंडी हो गई, She started rebuking Sarah. What you? वो सारे का मजाक उड़ाने लगी। Anytime a person gets into pride, कभी भी जब किसी व्यक्ति में घमंड समा जाता है, he becomes spiritually blind. वो देखिए आत्मिक तौर पे अंधा हो Oh, जाता है। you don't teach me, okay? ओ तुम मुझे मत सिखाओ, Don't tell me all this. मुझे ये सब मत I बोलो, know what I'm doing. मुझे पता मैं क्या कर रहा Oh, हूँ। pride has entered you. ओ घमंड आपके अंदर Have आ you गया। ever wondered why the scripture says pride goes before a fall? You know who falls? A blind man falls. क्या आपने कभी ये पढ़ा है कि घमंड जो है व्यक्ति के आगे पतन के लिए जाता है? कौन व्यक्ति गिरता है? वही जो घमंडी है। Pride makes you blind. घमंड आपको अंधा बना देता It है। could be spiritual pride. ये आत्मिक घमंड हो सकता It है। could be pride of your looks, pride of your position, pride of whatever you have or whatever you think you are, and the effect is blindness. आपके रंग रूप का या आपके पद का या जो कुछ भी आप हैं, जो आपकी हैसियत है, उसका घमंड हो सकता है और इसका नतीजा क्या होता है? अंधापन। Hagar was proud that she had conceived, and her madam Sarah, she was barren. She grew proud, and she's evicted from that house. और देखिए ऐसा होता है कि हाजिरा घमंड से भर जाती है क्योंकि उसको बच्चा हो गया होता है और Listen उसकी to this. मालकिन सारा है वो तो बिल्कुल बांझ पड़ी हुई Listen to होती है, this. तो इस वजह से उसके अंदर घमंड आता है और वो सारा का मजाक उड़ाती है। इस वजह से उसको घर से बाहर निकाल दिया जाता है And now she's wandering. और अब वो जाके जंगल में भटक रही You होती know what है। is wandering? आप जानते हैं भटकना क्या होता है? Wandering. भटकना, Wandering is going forward without any direction. भटकने का मतलब ये है कि बिना किसी दिशा के आप बस आगे बढ़ते हैं। Just because you're walking does not mean you reach your goal. और क्योंकि आप चल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने लक्ष्य तक यूं ही पहुंच जाएंगे। Some people are just driving.
कुछ लोग तो बस खींचे चले जाते They don't know where they're going. हैं और वे जानते ही नहीं कहाँ दरअसल वे जा रहे हैं। How many listening to me right कितने now? लोग सुन रहे हैं हमारी इस Just वक्त? because you woke up in the morning doesn't mean you are going to be productive. You need to have direction in your life. Hey, आप सुबह उठे इसका मतलब नहीं कि आप चीजों को उत्पन्न करेंगे, नहीं नहीं नहीं, आपकी जिंदगी में मार्गदर्शन यानी दिशा होनी चाहिए। just because you are living doesn't mean you will be fruitful. You need to have direction in your life. Lift your hand. क्योंकि आप जिंदा हैं इसका मतलब यह नहीं कि आप Come on. फलवंत होंगे, आपके पास आपकी जिंदगी में दिशा होनी चाहिए। She's wandering. वो भटक रही She's थी। walking, वो चल रही but थी, she's wandering. लेकिन भटक रही She's थी। alive, वो जिंदा थी, but doesn't know whether she will live. लेकिन कोई उसके सामने संभावना नहीं थी कि वो जिएगी, And she gives up. और फिर वो हार मान She लेती says, है। I'm about to die. वो कहती है अब मैं मरने Her वाली हूँ, son is about to die. मेरा बेटा मरने वाला है, And she keeps her son far away. She says, I don't want to see my son die. और अपने बेटे को कहीं दूर वो ठेले पर बिठाती है और वो कहती है मैं अपने बेटे को मरते हुए देखना And नहीं the scripture चाहती। says, और वचन कहता है God opened her eyes परमेश्वर ने उसकी आंखें खोली and she saw a well. और उसने कुआं देखा। That well was always there. वो कुआं पहले से But हमेशा for वहां था, some reason she could not see the well. लेकिन कुछ कारण से वो उसके कुएं को नहीं देख पाई। But God had to remove that blindness from her eyes and she saw the well. Hey, लेकिन परमेश्वर को उस अंधेपन को उसकी आंखों पर से निकालना पड़ा, फिर वो उस कुएं को देख सकी। there are opportunities in front of you. आपके आंखों के सामने ऐसे There अवसर are पड़े things हैं। that God has prepared for you. परमेश्वर ने आपके लिए चीजों को तैयार करके But रखा what the है, devil does लेकिन is शैतान क्या he करता है? brings blindness before you. वो आपके सामने अंधेपन को ले आता And है you cannot see those things. और आप उन चीजों को देख नहीं You are पाते। saying, how can I come out of this financial breakthrough? और आप कहते हैं, पूछते रहते हैं, कैसे my इस आर्थिक breakthrough. तंगी से मैं अपने बाहर निकल पाऊंगा। Today God has to open your eyes. आज Hallelujah. परमेश्वर को आपकी आंखें That खोलनी ही blindness है has to go. और वो अंधापन जाना And है। when it goes, जब वो जाता है, you will know where you have to go. आपको पता चल जाएगा कहाँ You आपको will जाना है। see the things that God has prepared for you. आप उन चीजों को देखने पाएंगे जो परमेश्वर आपको तैयार करके रखा है। Hello. सुनिए Are you सुनिए, listening right now? क्या सुन रहे हैं Many इस वक्त? people, they say, God, what is this? और बहुत सारे कहते हैं परमेश्वर ये क्या है? Nothing. कुछ नहीं। Yeah. God has prepared so many things for you. परमेश्वर ने आपके बहुत सारी चीजें तैयार करके रखी हैं। What to do? क्या करें? The blindness. अंधापन, You can't see it. आप देख नहीं पाते। You can't see it. आप देख नहीं It's like a son cursing the father. कुछ छोड़ के नहीं गया, कुछ छोड़ के नहीं गया। बोले अंधे तेरी आंखें खोल, इतने सारी चीजें तेरे सामने हैं। ऐसा जैसे कि एक बेटा अपने बाप पर शाप बोल रहा है, आरोप लगा रहा है, कुछ छोड़ के नहीं गया, कुछ छोड़ के नहीं गया। अपनी आंखें खोल अंधे, अपनी आंखें खोल, क्या कुछ छोड़ के गया? Yes. Tell somebody. किसी को बोलिए, Let the Lord open our eyes this evening. प्रभु हमारी आंखें खोले आज की शाम। Have you heard people say, क्या आपने सुना लोग I don't कहते know what to do. हैं पता नहीं क्या करूं? what do you mean you don't know what to do? क्या मतलब है इसका कि आप नहीं जानते क्या करना है? If the Lord is on your side, you will know what to do. अगर Hallelujah. प्रभु आपके पक्ष में, आपको पता होगा क्या करना है। So many things. कई सारी चीजें God has prepared, not things. परमेश्वर ने देखे चीजों को, चीजें नहीं, चीज नहीं, लेकिन चीजों को Hey. आप पे तैयार करके रखा है। Things for those he loves. वो चीजें जो उसके लिए जो उसे प्यार करते Pastor, हैं। he loves me. पासवान जी क्या मुझसे प्रेम करता है? Of course. यकीन He है, gave his son for you and me. उसने आपके मेरे लिए अपना बेटा दे दिया। That's the truth. यह है सच्चाई। For me, Pastor, for me, पासवान जी मेरे लिए, मेरे he लिए has prepared things. He has prepared a house. He has prepared a wife, a husband, children, and many other things God has prepared. And now when the Lord opens your eyes and you pray, God, open my eyes, enough is enough, I turn to you, boom, your eyes will open and you start seeing those things one by one. I decree in Jesus' name. और फिर जब परमेश्वर Yes. आप कहते हैं परमेश्वर मेरी Yes. आंखें खोल दे, तब परमेश्वर झट से आपकी आंखें खोल देता है। फिर आपको एक एक करके चीजें दिखती चली जाती हैं। What is confusion? ये गड़बड़ी क्या है? It's blindness. यह है अंधापन, You can't see the way. आप रास्ता नहीं देख पाते हैं। What is confusion? ये उलझन गड़बड़ी क्या है? Well, I don't know where to do, what to do. मुझे समझ में नहीं, क्या करूं, कहां से करूं, क्या करूं? Left जाऊं, right जाऊं, what to do? दाएं जाऊं या बाएं जाऊं, कहां जाऊं, क्या It's करूं? blindness. ये अंधापन। I told you the devil can bring blindness. आपको पता है कि शैतान अंधापन ला सकता है, Pride can bring blindness. घमंड भी अंधापन ला सकता So I है। deal with how blindness comes. तो कैसे आता है ये अंधापन? Are you walking in pride? क्या आप घमंड में चल रहे हैं? Then you need to humble yourself. तो आपको अपने को नम्र करने की जरूरत है। You need to humble yourself. आपको अपने को नम्र करने की Say, जरूरत है। God, कहे परमेश्वर please forgive my pride. मेहरबानी करके मेरे घमंड को क्षमा And कर। then God will start leading you. और फिर परमेश्वर आपकी अगुवाई Can I करने tell लगे। the people watching right now? क्या लोग जो लोग देख रहे हैं उसे कह सकते हैं हम इस वक्त? You will see opportunities you never saw before. आप ऐसे अवसरों को देखेंगे जिसको आपने पहले कभी ना देखा You हो। will see things that God has prepared for you, and you will enter those things. You will enter those doors in Jesus' name. और आप उन चीजों को देखें जो परमेश्वर आपने तैयार करके रखा है, और आप उन रास्तों में से, उन दरवाजों में से कदम रखेंगे, प्रवेश करेंगे जो परमेश्वर ने आपने तैयार Somebody करके shout रखा है। hallelujah. कोई चिल्लाए हालेलुया। They could not find the door. वे दरवाजा ढूंढ नहीं पाए। Hagar could not see the well. हाजिरा जो थी वो कुएं को नहीं देख पाई, And God had to open her eyes. परमेश्वर को उसकी आंखें खोलनी पड़ी। Listen to this. सुनिए इसे। I'll give another man. और एक आदमी को देखते हैं।
Zacchaeus. जक्कई Well, is Zacchaeus blind? No, जक्कई अंधा नहीं, he was not blind. वो अंधा नहीं था। But you see, लेकिन आप देखते हैं one day एक दिन he said, I want to see. उसने कहा मैं देखना चाहता हूँ, मैं क्या? देखना चाहता He हूँ, said, I want to see something I've not seen before. मैं कुछ ऐसी चीज देखना चाहता हूँ जो पहले मैंने नहीं देखा। And people ask him, what do you want to see? लोग पूछ रहे हैं, क्या 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 तुम देखना You're a चाहते rich man. हो? तुम एक अमीर आदमी हो, You've seen many things. तुमने बहुत सारी He चीजें says, देखी। no, 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 no. वो कहता नहीं नहीं I नहीं, want to see Jesus. मैं यीशु को देखना चाहता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। He said, I'm short. वो कहता है मैं नाटा हूँ, I'm a dirty man. मैं गंदा आदमी हूँ, I cheat people. मैं लोगों को फंसाता I do हूँ all this hera-fairy business. और ये मैं सारा हेरा फेरी का बिजनेस करता हूँ। In the natural, I cannot see Jesus. स्वाभाविकता के तौर में अगर देखा जाए तो मैं यीशु को नहीं देख सकता। My report card says I cannot see Jesus. मेरा रिपोर्ट कार्ड ये बयान करता है कि मैं यीशु को नहीं देख सकता हूँ। See, you see? तो आप देखते हैं Thing to overcome blindness. दूसरी Third thing, चीज, sorry, तीसरी चीज इस अंधेपन पर जय पाने के is वो है you should have a desire आपके अंदर तमन्ना होनी चाहिए, लालसा होनी चाहिए to see. देखने की। When you carry that desire, Lord, I want to see things in और this. जब आप उस लालसा उस तमन्ना को अपने अंदर लिए रहते हैं, प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूँ, The Lord will always work through that desire. प्रभु हमेशा लालसाओं के जरिए काम करेगा। You know, David says, Lord, I want to see wondrous things from your word. और दाऊद ने ऐसा कहा कि प्रभु मैं आपके वचन में से अद्भुत बातों को देखना चाहता हूँ। बोले वचन में क्या है? You know, people read the Bible, तो 5 बार पढ़ा, nothing है. You know, when you open your eyes, boom, something new will come. और देखिए जब परमेश्वर आपकी आंखें खोलेगा और जब आप बाइबल में देखेंगे कुछ झट से एक नया आ जाएगा। God, if opens the eyes of the businessman, I tell you, your business will go from here to there. Hallelujah. अगर परमेश्वर व्यवसाय के लोगों की आंखें खोल दे तो बताना चाहते हैं आपका व्यवसाय यहाँ से वहाँ बुलंदी पर पहुंच जाएगा। In your relationship, आपके संबंधों में if God opens your eyes, अगर परमेश्वर आपकी आंखें खोलता है, instead of beating others, you will be the best partners in Jesus' name. एक दूसरे को पीटने के बजाय ऐसा होगा कि एक दूसरे के सबसे श्रेष्ठ साथी आप बन जाएंगे। बोले अभी तक जुड़े हुए हैं, पता नहीं क्यों. बोले दो अंधे लोग एक दूसरे को पीट रहे. So every day Zacchaeus is walking up and down. तो देखिए हर दिन ऐसा होता था कि जक्कई वहां टहलता था, घूमता फिरता था। And one day और एक दिन he says, my goodness, उसने कहा अरे बाप रे, this tree, ये पेड़ I never saw it. कभी मैंने इसे देखा नहीं How था। many of you know there are things that are around you but you never saw it? कितने लोग जानते हैं कि चीजें ऐसी आपके आसपास रही हैं लेकिन आपने कभी उनको देखा नहीं। And maybe from the childhood Zacchaeus never climbed the tree, but that day as a man he climbed a tree and he saw Jesus. Hallelujah. संभव है कि बचपन से जक्कई ने उस पेड़ को ना देखा हो, लेकिन उस दिन उसने पेड़ को देखा और उस पर चढ़कर उसने यीशु को देख लिया। May God open your eyes. आज परमेश्वर आपकी आंखें खोले। Lift your hands and pray with me 3 times. Lord, open my eyes to see the things you have prepared for me. Begin to pray. चलिए Begin अपने to हाथ pray. लगाकर 3 बार ये Begin to प्रार्थना करें, pray. कहे कि प्रभु Come मेरी on, आंखें come खोल on. दे ताकि मैं देख सकूं चीजों को जो तूने मेरे लिए तैयार करके रखी हैं। Everybody lift your hands and begin to pray. Lord, open my eyes to see the things you have prepared for me in Jesus' name. Pray. चलिए बोलिए बोलिए प्रभु मेरी pray. आंखें खोल दे ताकि मैं उन चीजों को देख सकूं जो आपने मेरे लिए तैयार करके रखी हैं यीशु के नाम By में। the time this teaching is over, ये शिक्षण खत्म होने के may समय you तक receive what you are praying for. जिस चीज के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं आप उन्हें पा लें। In the mighty name of यीशु के Jesus. समर्थी नाम में। Somebody say, I receive this word. कोई तो Hallelujah. चिल्लाए मैं इस वचन को ग्रहण करता हूँ। You see that? आप देखते हैं This is what you should do. और यही तो आपको करना So, है। how blindness comes? तो कैसे अंधापन आता है? Demonic powers, शैतानी शक्तियां they blind you. वे आपको अंधा कर देती हैं। That this is the devil's speciality. He says, if I can make this blind fellow blind, he will never enter into what God has for him. और इसी काम में तो देखिए शैतान माहिर है। वो कहता है कि अगर इस व्यक्ति को मैं अंधा कर दूं आत्मिक तौर पे तो जिस काम को करने के परमेश्वर ने इसे बुलाया उसमें कभी ये जा नहीं पाएगा। Second thing, दूसरी चीज pride. घमंड। This fellow knows little things. Let us, butter this guy, ओ ये व्यक्ति pride, थोड़ा बहुत जानता है ना, तो चलो इसको मैं थोड़ा और मस्का मारता हूँ, ये घमंड से भर जाएगा। Now, अब pride has blinded him. घमंड ने आपको अंधा कर दिया He है। cannot see further things. आप आगे की चीजें देख नहीं पाते। When you walk in pride, you cannot grow. और जब आप घमंड में चलते तो आप बढ़ नहीं पाएंगे। When you walk in pride, you cannot see. जब आप घमंड में चलते आप देख नहीं You पाएंगे। can only see other people's mistakes. You can, come on now. सिर्फ आप दूसरों की गलतियों को देख सकते हैं लेकिन फिर अपनी। Oh, चलिए। hallelujah. But the wise man, लेकिन बुद्धिमान लोग he sees himself first. वो पहले अपने को देखता है। He sees what's wrong with him. वो देखता है कि उसमें क्या खराबी है। You know, before going out, we see ourselves. Come on, help me और now. देखिए, हम Hallelujah. बाहर निकलने से पहले अपने आप को देखते हैं ना आईने में। Before going out in the world, we look at ourselves. I don't know how many times. और देखिए बाहर दुनिया में जाने से पहले हम अपने आप को आईने में पता नहीं कितनी बार देखते हैं, आगे पीछे पूरा देखते हैं। And somebody, your brother says, "Harry, और look कोई at आपका me. कोई भाई कहता है आपसे, How am I looking? Ah, good, good, good." अगर उससे आप पूछते हैं मैं कैसा दिख रहा हूँ, वो कहेंगे हाँ How ठीक है many ठीक है। times we look at पता ourselves? नहीं कितनी बार हम अपने आप को I देखते don't know हैं, how many times we shake our hair. और पता नहीं कितने बार हम अपने बालों को सहराते रहते हैं। थोड़ा इधर क्या आ गया वापस, थोड़ा सा,
But in the realm of the spirit, लेकिन आत्मा के आयाम में we only look at others, we never look at हम ourselves. सिर्फ दूसरों को ही देखते हैं, अपने आप को कभी नहीं देखते। Think about what I said. सोचिए जो हमने कहा है। Pride stops us from looking at ourselves. और घमंड देखिए जो हमें रोक देता है अपने आप को देखने से। Come on, say this after me. चलिए कहेंगे, Lord, open my eyes to see the things you have prepared for me, God. कहें ऐसा कि प्रभु मेरी आंखें खोल ताकि जो चीजें आपने मेरे लिए तैयार करके रखी मैं उन्हें देख सकूं। Lord, open my eyes. Come on, say this one more चलिए time. फिर से एक बार बोलेंगे, To enter into those things that God you have prepared for me. Hey, जो चीज this प्रभु is आपने मेरे powerful. तैयार करके रखा This उसमें is मैं प्रवेश कर powerful. पाऊं। My goodness. If somebody prayed this, अगर किसी ने प्रार्थना की है, glory to Jesus. यीशु को महिमा मिले। God will show you some wells. God will show you some oil wells also perhaps. सब परमेश्वर देखिए आपको कुछ कुआं दिखा देगा, आपको तेल का कुआं, सवाल ही नहीं भाई. तेल का कुआं भी दिखा देगा, Some hidden treasures, I don't कुछ know. छिपे हुए खजाने, Some business ideas that nobody has known on the कुछ- YouTube or internet anywhere. कुछ व्यवसाय की ऐसी तरकीबें और योजनाएं भी आपको दिखा देगा जो We are कहां पे भी searching on YouTube पर YouTube, कहीं पर भी some नहीं पा business सकते। ideas. कुछ तो ऐसी तरकीबें व्यवसाय के लिए, But God has all the ideas, brother. लेकिन परमेश्वर के पास तो पहले से ही सारी योजनाएं। पैसे की जरूरत नहीं है, खुदा का एक स्पार्क आ गया ना, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, पैसा तुम्हें ढूंढते आ जाएगा यीशु के नाम से. I'm telling you, कहते हैं आपसे, people of God, don't not fear the famine. Here comes the word of the Lord. परमेश्वर के Hallelujah. लोगों अकाल से मत डरिए, ये परमेश्वर का वचन आ रहा है, Receive now. ग्रहण करिए अब, Don't give up. हार मत Say, मानिए। Lord, open my eyes. अब बस कहता है प्रभु मेरी आंखें खोल Now, दे। what happens in blindness? I want to show you. और क्या होता है अंधेपन में आपको दिखाना चाहेंगे। 2 Kings chapter 6, दूसरा राजा उसका 6वां अध्याय, verses 18 through 19. उसके 18वें वचन से 19वें वचन में। Now, this is a portion of scripture where the Syrian army is sent against prophet Elisha. यहाँ पर देखिए आयत का भाग ये सिखाता है कि यहाँ पर सीरिया की जो फौज जो है भविष्यवक्ता एलिशा के खिलाफ में भेजी गई थी। Watch this. सुनिए, Let's catch the action, verse 18. So when the Syrians came down to him, Elisha prayed to the Lord and said, Lord, strike these people, I pray, with blindness. Now watch this, watch this. देखिए जब सीरिया के लोग उसके पास आए तब एलिशा ने प्रभु यहोवा से यह प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल। सुनिए सुनिए, And he struck them, God struck them with blindness according to the word of prophet Elisha. देखिए आगे लिखा है एलिशा के इस वचन के अनुसार परमेश्वर ने उन्हें अंधा कर दिया। Now watch this. अब सुनिए, Now they are not physically blind. देखिए वो शारीरिक तौर पे अंधे नहीं हुए, They have eyes, उनके पास आंखें थी but they cannot see. लेकिन वो देख नहीं पाए। Now watch this. अब आगे देखें, Verse 19. तब 19वां वचन, Then Elisha said to him, this is not the way, तब एलिशा ने उनसे कहा ये रास्ता नहीं है, nor is this the city. ना ही ये नगर है। They can see. वे देख सकते हैं। And Elisha said, this is not the way. और एलिशा उनसे कहता है कि ये रास्ता नहीं है, This is not the city. ये वो नगर नहीं है। Saying, what? क्या? Listen to this. सुनिए इसे, Follow me. मेरे पीछे हो लो। Now, देखिए can a blind man follow somebody? क्या कोई अंधा व्यक्ति किसी के पीछे चल सकता है? You say, मेरे स्कूटर के पीछे आओ. You know? अगर आप किसी कहते हैं चलो मेरे स्कूटर के पीछे आओ, Sometimes we are on the scooter, बोले आगे क्या किधर गया, we go कभी somewhere कभी देखिए else. स्कूटर पे रहते हैं पीछे पीछे जाते हुए अचानक हम रास्ता भटक जाते हैं, वो कहाँ आगे गए। People with eyes, आंखों लोगों की आंखें होते हुए भी, they go in some lane and then after 1 hour, अरे where are you? You know, और like, you लोग know. किसी गली में देखिए वो घुस जाते हैं, फिर 1 घंटे के बाद पता चला अरे कहाँ थे तुम। I don't know about you, but many times, you know, it has happened like that. And now this prophet is telling, और अब ये भविष्यवक्ता कह रहे हैं not just one fellow, सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है it's an वहाँ, army. एक बड़ी फौज है, Saying, follow me. और वो फौज से कहता मेरे पीछे आओ। If they were blind, अगर वे अंधे थे half of them would have gone somewhere, half of them would have gone somewhere. आधे उनके आधी तादाद में लोग कहीं और चले गए They होते, can आधी कहीं और चले गए see. They थे, can see. लेकिन वो देख सकते थे। But now they are spiritually blind. लेकिन अब देखिए वो आत्मिक तौर पे अंधे हो गए थे। What he's saying they are believing. जो वो कह रहे थे उसमें वो विश्वास कर रहे थे। Sir, if you invest, na, श्रीमान अगर आप इसमें निवेश करेंगे ना 18% you'll get 18% आपको मिलेगा per month. हर महीना। Very good. अब बहुत अच्छा है। Bank is hardly giving anything, sir. बैंक तो बहुत ही कम दे रहा है। Why you are keeping 20 lakhs at home? Put it over here. Put it over here. 20 लाख रुपए क्यों वहां पे रखते हो? यहाँ डाल दो, इसमें लगाओ, इसमें लगाओ। And suddenly you see, और अचानक आप देखते हैं you go blind, and you are misled. और फिर देखिए आप गुमराह हो जाते हैं। You are misled. आप गुमराह हो जाते हैं। What if you had prayed? क्या अगर आप प्रार्थना करें इसके लिए God, open my eyes. कि परमेश्वर मेरी आंखें खोल। Hey, you fellow, what is this? अरे ये क्या है? I'll give you 20. Come, give me your मैं money. तुम्हें 20% देता, चलो अपना पैसा मुझे दो। Now you're getting me right अब now. आपको समझ में आ रहा You है? follow what I'm trying to आपको say? समझ में आया? And he's saying, follow me, I'll bring you to the man whom you seek. But he led them, instead of taking them this side, he took them to Samaria. और देखिए एलिशा उनसे कहता है कि चलो मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें उस मनुष्य के पास जिसे तुम ढूंढ रहे हो पहुंचाऊंगा। देखिए उसको उनकी उस ओर लाने की वजह कहीं और शमरोन में लेके चला गया। Blindness will lead you in the wrong direction. अंधापन देखिए आपको गलत दिशा में अगुवाई करेगा। Are you in the wrong direction? क्या आप गलत दिशा में जा रहे हैं? Have you put your ladder against the wrong wall? क्या आपने अपनी सीढ़ी
गलत दीवार के खिलाफ में लगाए हैं। Many people are climbing, they are climbing. बहुत सारे देखिए चढ़ने की कोशिश And when करते they हैं reach over there, और जब वे पहुंचते वहां sorry, wrong wall, come down again. माफी चाहते, गलती हो गई, गलत दीवार पे Are चढ़ you listening गए। right now? आप सुन रहे हैं? So why this happens? तो क्यों ये होता है? Because of blindness. ये अंधेपन की वजह से होता है। Today, make it your prayer point. आज अपना ये प्रार्थना मुद्दा God, बनाओ। open my eyes today परमेश्वर मेरी आंखें खोल दे to आज, see the right direction, सही दिशा को देखने की, to walk in your path. आपके Say, रास्तों पर चलने की। and I tell you in the name of और Jesus, आपसे कहते हैं यीशु के नाम 1 में, month एक you महीना will have testimonies. आपके पास Hallelujah. गवाही होगी। I'm not teaching you nonsense. I'm telling you the word of the Lord. आपको बेतु का Hallelujah. बातें नहीं सिखा रहे, आपको परमेश्वर का वचन बता रहे हैं। In the name of यीशु Jesus, के नाम में। you took a wrong turn in life. आपने गलत निर्णय You लिया, took a wrong turn in your आपने business. व्यवसाय में गलत मोड़ दिया। Is there any help for me, Pastor? क्या पासवान जी मेरे लिए कोई मदद The है? word of the Lord comes to you. प्रभु का वचन आपके पास The आता word है, of the Lord is speaking to you. प्रभु का वचन आपसे बोल रहा Your है, life is changing. आपकी जिंदगी बदल Your रही है, direction is आपकी changing. दिशा बदल रही है। Oh, lift your hand and shout an amen, ओ somebody. अपने हाथ चिल्लाएं आमीन कोई तो। Open your mouth, open your mouth, open चलिए your अपना मुंह खोले, mouth. अपना मुंह खोले। Begin to pray, Lord, open my eyes to प्रार्थना शुरू करें, प्रभु मेरी आंखें खोल, walk in your paths, oh मेरे God. मार्गों पर चलने के लिए Open my eyes, oh मेरी God, आंखें खोल दे प्रभु, to see the right direction. सही दिशा को देखने के Open लिए। your mouth and shout amen, somebody. चलिए अपना मुंह खोल के चिल्लाएं आमीन कोई Open your तो। mouth and say amen, everybody. अपना मुंह खोल के कहे आमीन इस वक्त। Should I buy in this place? Should I buy in that place? What should Yeah. I put? What should I put? Opening of the eyes. क्या मैं ये जगह खरीदूं या वो संपत्ति खरीदूं? क्या करूं? क्या करूं? अपनी आंखें खुलने के प्रार्थना करें, प्रभु मेरी आंखें खोल दे। Jesus told the Pharisees, यीशु ने फरीसियों से कहा, don't follow the blind. अंधे के पीछे मत जाओ, That fellow is only blind. वे खुद अंधे हैं And you are also following. और तुम भी उसके पीछे जा रहे हो। किधर लेफ्ट जाऊं? अच्छा. क्या बाएं जाना है? हाँ ठीक है। That fellow only cannot see. वो व्यक्ति ही नहीं देख पा रहा Now you are following. है और आप उसके पीछे जा रहे हैं, Following. जा रहे हैं, And both of them fall in the ditch. जो दोनों जाके गड्ढे में गिर रहे हैं। If you want to be a good leader, अगर आप एक अच्छा अगुवा होना चाहते हैं, pray this prayer. ये प्रार्थना करिएगा, Lord, open my eyes. प्रभु मेरी आंखें खोल दे। You may not be handsome, आप बड़े रूपवान आकर्षक or में that दिखते हो, dude fellow, dude. एकदम वो डूड जैसे एकदम You may not be like, hello, all that stuff. एकदम हेलो स्टाइल में But बोला, you are a man. लेकिन आप ऐसे You are a woman आप एक महिला हो whose eyes are opened by the Holy Spirit. जिनकी आंखें पवित्र आत्मा के द्वारा Oh, खोल दी raise गई your हैं। hand. You may वो be अपने a हाथ उठाएं। simple man. शायद आप बड़े सीधे And साधे when व्यक्ति your हो, eyes are opened, लेकिन जब आपकी आंखें खुल जाती people हैं, will follow you. लोग आपके पीछे चले गए। People will know this man, this woman. लोग कहेंगे हाँ ये व्यक्ति, ये आदमी, ये औरत सादी दिखती है. She's a simple सीधे man, साधे दिखते हैं, एकदम simple woman. एकदम सीधी साधी But the दिखती है, eyes are open. लेकिन इसकी आंखें खुली हुई हैं। When this person speaks, when this person does something is different. जब ये व्यक्ति Come कुछ on. करते हैं, कुछ बोलते हैं, तो कुछ तो अलग होता है। May this be your testimony होने जी ये आपकी गवाही बने in the mighty name of यीशु के Jesus. सामर्थी नाम में। And Elisha brought them to the king of Samaria. और फिर उसके बाद एलीशा उन्हें शमरोन के राजा के पास लाता Says, है। now Lord, open their eyes. अब इनकी आंखें खोल दे प्रभु। A man who walks into the anointing वो व्यक्ति जो अभिषेक में चलता है, has the power to pray for people's eyes to open. उसके पास सामर्थ होती है लोगों की आंखें खुलने के लिए प्रार्थना करने की। Can we pray today in the name of क्या आज हम Jesus? प्रार्थना करेंगे यीशु के I नाम said, में? can we pray today in the name of हमने कहा Jesus? क्या आज हम प्रार्थना करेंगे यीशु के नाम में? Somebody raise your hands as I receive this word right now. कोई तो अपने हाथ उठाकर कहे इस वचन को मैं ग्रहण करता हूं That's इस why वक्त। wives can pray for their husbands. Father, in the name of Jesus, remove that blindness from my husband. Remove the blindness from my children. Let them see your light in Jesus' name. And you know what? Your husband will come to the Lord. और Your देखिए आप children प्रार्थना will कर come सकते to the हैं Lord. कि प्रभु मेरे पति की आंखें खोल दे, मेरे बच्चों की आंखें खोल दे प्रभु, ताकि तेरे तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर चमक सके। आपको बता दें फिर क्या होगा, आपके बच्चे आपके पति प्रभु की ओर मुड़ जाएंगे। Mama, you have the power to pray for your family. माँ जी आपके पास सामर्थ्य है अपने परिवार के खातिर प्रार्थना करने Dear की। husband, you have the power to pray for your family. प्यारे पतियों आपके पास सामर्थ्य है अपने परिवार के खातिर प्रार्थना करने की। But the problem is, लेकिन दिक्कत यह होती है even you are blind. आप खुद भी अंधे बना दिए गए हैं। You're saying ये ठीक नहीं है, बोले मेरी पत्नी ठीक नहीं है, मेरे बच्चे ठीक नहीं है, तू ठीक है क्या? Think about what I'm saying. सोचिए जिसके बारे में बोल Just रहे हैं, think, sir. Think. बस जरा सोचिए सोचिए। ये लोग ही ठीक ही नहीं, सब लोग मेरे अगेंस्ट है, तू ठीक है क्या? Think what I'm saying, guys. सोचिए इसके बारे में जरा। I cannot get along with my mother-in-law. मैं अपनी सासू माँ के साथ सही संबंध में नहीं आ रहा हूँ, She's also blind. वो भी अंधे हैं, You're also blind. आप भी अंधे बन दिए गए। Don't get angry on me. गुस्सा मत होइएगा। Truth is bitter, सच जो होता है ना कड़वा होता है, but he heals people. लेकिन लोगों को चंगा करता है। Don't blame people. लोगों पर When you आरोप मत लगाएं। pray, जब आप प्रार्थना करते हैं, the eyes will open. आपकी आंखें खुल जाएंगी, Something will change. कुछ तो बदल जाएगा। In your family, आपके God परिवार will build something big.
परमेश्वर कुछ बड़ा बनाएगा। Mark my words, I said this. देख लीजिए जो कह रहे हैं आपसे, You can't build alone. आप अकेला बना नहीं सकते If you कुछ। can build, maybe you can build a stool alone or अगर something. आप बना सकते हैं अकेला, देखिए कुछ स्टूल या But कुछ ऐसा yeah, बना yeah, सकते yeah. But if you have to build a building, हैं। लेकिन आपको एक बिल्डिंग बनाना have है। you seen one fellow बोले क्या बांध रहा है, बोले बिल्डिंग बांध रहा है, तू आपने अकेला किसी व्यक्ति को देखा है, अगर आप उससे हो पूछते गया क्या बना? बिल्डिंग 20 साल के बाद आने वाले। Even Noah built the ark with his family. नूह ने भी जहाज को बनाया अपने परिवार के साथ If you have to मिलकर। build something big, अगर आप कुछ बड़ा बनाना चाहते learn हैं, to work as a team. एक टीम के रूप में काम करने को सीखो। Even today in the corporate world, आज they are के- looking for team players. आज के इस संसार में भी देखिए वे टीम प्लेयर्स को ढूंढते हैं। But in the church, what happens? लेकिन चर्च में कलीसिया में क्या होता है? I don't like this fellow. मुझे ये व्यक्ति पसंद And है, you, I don't like you only. तुमको तो मैं बिल्कुल पसंद ही नहीं करता। I'm going somewhere मैं else. कहीं और जा रहा हूँ। Where you'll go? कहाँ जाएंगे आप? It's one ark. एक ही तो जहाज है, Come on, somebody. It's one ark. एक ही जहाज है। Bully, that church is better. वो कलीसिया बेहतर है, For some days, it will be better कुछ only. दिनों के लिए वो बेहतर रहेगा, After some days, third कुछ church. दिनों के बाद। So the problem is not with the people. तो समस्या जो है वो लोग नहीं, You're also blind. आप भी अंधे बन गए हैं, You cannot see. आप नहीं देख पा रहे। Today, आज। may God open our eyes. परमेश्वर आपकी आंखें And खोले then you will say, my brother, और फिर आप कहेंगे पर my मेरे sister, भाई, मेरी बहन, I have my weakness. मुझ में एक कमजोरी And है so do you. और वैसे आप में Let's भी है। take our weakness to the Lord. आइए Hallelujah. अपनी कमजोरी को प्रभु के पास You've got लाएंगे। problems. You got the splinter in your eye. Even I have a little something in my eyes. Let's go to the Lord. He will remove everything and we'll build something big for God so that the next generation will say, blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Come on, somebody. चलिए चलिए समय कहेंगे Glory. कि तुम्हारे आंखों में तिनका है, मेरी आंखों में भी समस्या। चलो हम दोनों मिलकर प्रभु के सामने जाएंगे ताकि प्रभु हमारी आंखों में से इस Jesus. अंधेपन को निकाल दे, ताकि आने वाली पीढ़ी इस बात को देखकर कहे यीशु ही प्रभु है। Hallelujah. हालेलुया। There is nothing to show to the next generation. अगली पीढ़ी को दिखाने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। We tell our children, see God. Hey. हम अपने बच्चों से कहते हैं परमेश्वर को देखो, And they're like, children say, where, mama? और बच्चे लोग पूछते हैं मम्मी कहाँ देखूं? Can't you believe? क्या तुम विश्वास नहीं कर पा रहे हो? They have to see something. They कुछ तुम्हें देखना है have to उन्हें। see the power of God. उन्हें परमेश्वर की समझ को Then our देखना है। children will be stuck into the presence of God. फिर उसके बाद हमारे Hallelujah. बच्चे परमेश्वर की उपस्थिति में टिके Come on, रहेंगे। open your mouth and shout amen, somebody. चलिए अपना मुंह खोलो, चिल्लाएं आमीन इस वक्त। Go to Jeremiah 33:3. निकालें यिर्मयाह का I want to 33 show you वाला something. I want to show you कुछ something. दिखाना चाहेंगे आपको इस Don't miss वक्त। this. Don't miss this. चूकिए नहीं, चूकिए Don't miss what I'm saying today. जो आज आपसे कह रहे हैं उसे चुके नहीं। Call to me. मुझको पुकारो And what? और क्या? I will answer you. मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। Doesn't stop there. क्या वहीं रुक जाता है? And then God says, फिर परमेश्वर कहता I है will show you. मैं तुम्हें दिखाऊंगा। Now, when you call to me is prayer. जब तुम उसे पुकारते वो है प्रार्थना, Answer you is prayer answered. और आपको उत्तर देना ये प्रार्थना का उत्तर मिलना है। Now we know that. हम जानते हैं। Now further on. अब आगे देखेंगे। And now the prayer enters a prophetic dimension. Everyone say prophetic उसके बाद dimension. प्रार्थना जो है भविष्यवक्ताई के आयाम में जाती है And show you. और दिखाऊंगा। I'm showing you. मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। Come on, I'm showing you something. मैं तुम्हें कुछ दिखा रहा हूँ। When I show you something, जब मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, you better see, brother. अच्छा है कि तुम देखो उसे। Show you what? दिखाऊंगा क्या? Great, महान, great things, महान चीजें, mighty things, सामर्थ्यशाली चीजें which is beyond your understanding, जो तुम्हारी समझ के परे है, which you don't know, जिन्हें तुम नहीं जानते, which you have not studied. जिनका तुमने कभी पढ़ाई नहीं की। This is the realm of revelation. ये है प्रकाशन का आयाम। Nobody can teach you these things. कोई भी आपको ये चीजें सिखा नहीं सकता। But sir, how do you take 100 rupees and make it 1 crore? और Say, I कैसे- can't teach you. It just happens. Hallelujah. जैसे 100 रुपए लेके आप Come on, करोड़ों come में on, come on. तब्दील कर देते हैं, मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। ये यूं ही होता है। How do you honor your mother? अपने माँ का कैसा आदर करना, How do you honor your wife? अपनी पत्नी का कैसे सम्मान I करना, want to know. मैं जानना चाहता हूँ। बोले बेटा ये चीज सीखी नहीं जाती, ये अंदर से आती है। कितने लोग समझ रहे हैं? क्या समझ रहे हैं इस वक्त? बोले तुम लोग इतना झगड़ते हो फिर भी इतना प्रेम कैसा करते हो? बोले हम लोग एक साथ प्रार्थना करते हैं इसलिए आंखें खुल जाती हैं। You are receiving now. आप ग्रहण कर रहे हैं इस वक्त। Call to me. मुझको One पुकारो। of the ways you can open your eyes to the realm of the spirit is to call upon the Lord right एक now. तरीका आत्मा के आयाम में आपकी आंखें खुलने का वो है कि प्रभु के नाम को पुकारें। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु।